Good morning, dear friends. Welcome to the SAGE group. I am Dr. Nilima Goswami, Professor SIRTS Pharmacy, and today we are going to discuss the topic surface tension. Its code is BP302. So today I'm going to start the new topic, surface tension and interfacial phenomena. So before starting this topic, we are discussing about some definitions which are related to this unit or this topic. So first one is interface. Interface is a boundary between the two faces which exist together. And second definition is surface tension. It is defined as tensile force that acting at the surface of liquid which is in contact with gas, or it may be between two immiscible liquids. And next definition is cohesive force, the force acting between the molecules of same phase. Then adhesive force, the forces acting between the molecules of different phases. Then next is interfacial tension. It is a force per unit length that exists at the interface between two immiscible liquid phases. Then positive adsorption, when some molecules and ions, when dispersed in a liquid, are partitioned in favor of the interface. Then negative adsorption, the material that material is such as inorganic electrolytes. So the material when dispersed in a liquid are partitioned in favor of the bulk. Then next one is surfactants. These are the agents which are used to lower surface of liquid and also reduces interfacial tension between two liquids. Next definition is amphiphils. The amphiphils are the surfactants which have both polar and non-polar groups. The next one is HLB system, hydrophilic lipophilic balance. HLB means hydrophilic lipophilic balance. So HLB system consists of arbitrary scale in which values are assigned to different surfactants according to their nature. तो वेदर दैट नेचर इज एसिडिक बेसिक उसके अकॉर्डिंग HLB स्केल पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. देन नेक्स्ट टर्म इज solubilization. Solubilization is a process of increase the solubility of organic compounds in aqueous system due to presence of surface active agents. Then detergency, it is a phenomena in which dirt or foreign material is removed from the surface with the help of surfactants. And last one is adsorption. Adsorption is the accumulation of gas or liquid to the surface of solid. So these are the following terms which are regularly used in this topic. The topic is surface tension and interfacial phenomena. So these are the familiar terms which are frequently used in this topic. So let's start the surface tension. तो ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे वैसे, लेकिन व्हाट इज कोहेशन एंड अधेशन. तो वाटर कोहेशन एंड अधेशन, अगर मैं बात करूं कि एक लीफ के ऊपर अगर मैंने किसी ड्रॉप को डाला है, अगर वो ड्रॉप उसके ऊपर पूरा फैल जाता है या लीफ पूरी वेट हो जाती है, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो वाटर है, दैट वाटर स्टिकिंग टू द वाटर, तो वो पूरा का पूरा उसके ऊपर फैल जाएगा, तो वो एक फ्लैट सरफेस बनाएगा. लेकिन अगर वाटर उसके ऊपर पूरा स्टिक नहीं हो रहा है तो वो एक बीड जैसी फॉर्म बनाएगा. तो ये है कोहेशन एंड अधेशन. तो वेयर वुड यू फाइंड दैट कोहेसिव फोर्स एंड व्हाट इज अधेसिव फोर्स. तो यहाँ पे ये है, तो जितना सरफेस, ये जो हमारा ड्रॉप है वाटर की ड्रॉपलेट, इस पर्टिकुलर सरफेस से जितना टच में कम आती है,
तो वो टच में कम आएगी, तो वो ज़्यादा उसके टच में नहीं आएगी, तो वो हमारा सरफेस जो है वो बिल्कुल उसके कांटेक्ट में बहुत कम रहेगी, तो वो बीड फॉर्म करेगी। और अगर वो ज़्यादा टच में आएगी तो वो हमारी जो ड्रॉप है दैट शुड बी फ्लैटन। तो surface of any liquid that behaves as thought, it is covered by a stretch membrane. तो अगर ये सरफेस जो है वो हमारी सरफेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो द सरफेस टेंशन को अगर मैं डिफाइन करूं, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स दैट एक्टिंग एज सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद गैस और इट मे बी बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज लिक्विड और यहाँ पे ये गैस है। So that water molecules is in contact with that liquid or with that gas, upper air, with air. So in the liquid state, cohesive force and adhesive force exist, and the force acting between the molecule of same phase are called cohesive force. So that means कि यहाँ पे ये जो force एक ही उसके अंदर जो force यहाँ पे लग रहा है, that force is cohesive force. So the force acting between the molecules of the different phase is called adhesive force. तो यहाँ पर जो अब एक एयर का फोर्स है और जो वाटर का फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स. So the molecules in the bulk the molecules in the bulk liquid are surrounded in all the directions. So all the molecules are surrounded in all the direction by other molecules. So the net weight net force acting on this molecule is zero. तो यहाँ पे जो हमारा force होगा that is zero, while the molecules at the surface of a liquid experience an inward force towards the bulk. तो अब हम बात कर रहे हैं इस वाले molecule की. तो this force pulls the molecule of the interface together and stretch the surface. It means some tensile force is acting on the surface which is called surface tension. तो उसको हम क्या बोलेंगे? That is called surface tension. So तो ये हमारा surface tension का ये हमने डायग्राम जो है वो मेंशन यहाँ पे दिखाया है. Then अब हम बात करते हैं what is interfacial tension. तो interfacial tension is a force per unit length exist at the interface between two immiscible liquids. तो जो हमने अभी सरफेस टेंशन की बात की थी, तो यहाँ पे ये सरफेस टेंशन था. देन अब हम बात कर रहे हैं इंटरफेशियल टेंशन की. तो इंटरफेशियल टेंशन में हमारे दोनों लिक्विड्स हैं. सपोज यहाँ पे मैंने ये वाटर ऐड किया हुआ है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, तो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं. तो द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन इज कि फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट एग्जिस्ट एज द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स. If two liquids are completely miscible, no interfacial tension exists between them. तो अगर मैं वाटर के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स कर देती हूँ तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे. तो देयर इज नो इंटरफेशियल बिटवीन द बोथ टू लिक्विड्स. बट अगर मैं ऐसा कोई लिक्विड ले रही हूँ जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन इन वाटर या ऑयल इन वाटर, सो दे लिक्विड्स आर इमिसिबल और इनके बीच में यहाँ पे जो दोनों के बीच में एक इंटरफेशियल टेंशन है जिसकी वजह से वो उस आपस में मिक्स होने नहीं देता. सो द इंटरफेशियल टेंशन आर लेस देन द सरफेस टेंशन बिकॉज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द टू लिक्विड फेसेस which form an interface are greater than when a liquid and a gas phase exist together. So तो ये हमने अभी बात की व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज इंटरफेशियल टेंशन. तो हमने अभी ये देख ले और देखते हैं कि अगर जो हमारा अगर हम किसी वाटर की ड्रॉप को अगर मैं फॉल करती हूँ तो वो किसी सरफेस के ऊपर जाके गिर जाएगा. तो अगर वो इस तरह का फ्लैट सरफेस बनाता है तो दैट मीन्स कि इन दिस प्रॉपर कंडीशन देयर इज adhesive force is greater than cohesive force. और इन दिस ये जो केस है हमारा कि लीफ के ऊपर जो हमारा पानी ड्रॉप है वो ड्रॉप पूरा मूव करता रहेगा और वो पूरा लीफ को गीला नहीं करता है. तो दैट मीन्स कि इन दिस केस adhesive force is less than cohesive force. तो ये बीड फॉर्म करेगा और यहाँ पे ये वेटिंग पूरा उसको सरफेस को गीला कर देगा. देन इन दिस केस तो अब अगर मैं इसको ग्राफिकली हम लोग बात करें तो सरफेस एनर्जी ऑफ ये हमारा टेस्ट सरफेस है दैट इज अ सरफेस. और यहाँ पे ये जो सरफेस की हम बात कर रहे हैं ये सरफेस है हमारा ड्रॉप का सरफेस. तो ड्रॉप सरफेस
ड्रॉप सरफेस टेंशन एंड हेयर सरफेस एनर्जी टेस्ट सरफेस। तो ये जो है ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है और ये हमारा ड्रॉप है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, देखो तो जैसे जैसे हमारा ये जो ड्रॉप टेंशन है, ये टेंशन चेंज हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे टेंशन जो है वो, अगर ये हमारा एंगल जो है, दैट एंगल इज वेरी लो, धीरे धीरे एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है। अब ये एंगल हमारा जो है 90 डिग्री से अबव हो गया है। तो इन दिस केस लो सरफेस एनर्जी, और ये जो कंपाउंड्स है दैट आर बिहेव एज नॉन वेटिंग एजेंट्स, और इन दिस केस दैट हैज हाई सरफेस एनर्जी और दे हैव गुड एडेशन प्रॉपर्टी और दे आर हैविंग गुड वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये हमारा एक हो गया है। देन अभी हमने बात की थी इंटरफेशियल टेंशन की। तो इंटरफेशियल फेस और इंटरफेशियल टेंशन में कि दो लिक्विड्स जो हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे आपस में इमिसिबल थे और दे आर नॉट मिक्स प्रॉपरली। तो उन दोनों के बीच में जो हमारा टेंशन था उसकी वजह से वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे। तो इसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज गामा इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन को हमने डिनोट किया है गामा से, और इसकी जो यूनिट है वो है डाइंस पर सेंटीमीटर। तो ये हम अब हमारा इंटरफेस की हमने बात की। तो जो इंटरफेस है, दैट इंटरफेशियल फिनोमेना इज इम्पॉर्टेंट इन फार्मेसी। हाउ? तो एड्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग onto solid adjuvant in solid forms, solid dosage forms, then penetration of molecules through biological membranes, emulsion formation and stability, and surface dispersion of insoluble particle in liquid media to form suspensions. Then surface and interfacial tensions की अगर हम बात करें, तो in the liquid state the cohesive force between the adjacent molecules are well developed. For the molecules in the bulk of a liquid, they are surrounded in all directions by other molecules, जो हम लास्ट टाइम बात की थी हमने। तो उस केस में, in this case the force will be zero. Okay, the force will be zero. So और ये जो हमारी सरफेस टेंशन है उसका जो यूनिट है, दैट इट्स यूनिट इज डाइंस पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर। तो इसको हम इसमें हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइंस पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर। और इसका जो फॉर्मूला है इंटरफेशियल टेंशन का, वो है गामा इज इक्वल टू एफ बाय 2L। एफ इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फिल्म। जो उनके बीच में जो हमारा इंटरफेशियल टेंशन है, उस इंटरफेशियल टेंशन को ब्रेक करने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एफ। उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। एंड एल इज द लेंथ ऑफ द मूविंग बार। तो जिस बार को सपोज मैंने उसके ऊपर एक कुछ बार अप्लाई किया, मतलब कुछ लिक्विड था, और उसको जैसे हम बात करते हैं एक रिंग को अगर मैं पानी में डालूं, तो वो उसकी सरफेस के ऊपर जाकर के जब आप उसको ऊपर पुल करेंगे तो वो एक अपने साथ में एक रिंग लेके आ जाए, मतलब उसको अपने थोड़े से वाटर को अपने साथ में अटैच करके लाएगा। तो वो जो हमारा मूवेबल बार है उसकी लेंथ जो है दैट इज एल, और उसको ब्रेक करने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया, जब एक दैट इज कॉल्ड एफ। और उसको हम बोलते हैं जो हमारा जिसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो है हमारा सरफेस टेंशन। तो उसको हमने गामा से डिनोट किया है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया गामा इज इक्वल टू एफ बाय 2L। इसके बाद हम बात करते हैं अब सरफेस फ्री एनर्जी। तो व्हाट इज फ्री एनर्जी? सरफेस फ्री एनर्जी कि आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया पर या पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे, उसकी सरफेस पे आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस फ्री एनर्जी। सो the molecules near the surface of liquid have more potential energy as compared to the molecules in the bulk of the liquid. This means that the surface of a liquid increases, and the more molecules have this excessive potential energy. This energy is proportional to the size of the free surface. It is called surface free energy, और इसको हम डिनोट करते हैं अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अर्ग है डाइंस इनटू सेंटीमीटर।
और इसका जो फॉर्मूला है वो है इसको सरफेस फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा A। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर सरफेस फ्री एनर्जी। तो ये हो गया W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा A। दैट डेल्टा A, तो इसको मैं अभी इसको हम फॉर एग्जाम्पल लिक्विड ड्रॉप्स एज्यूम अ स्फेरिकल शेप। जैसे ही हमने यहाँ पे एज्यूम किया है दैट लिक्विड ड्रॉप इज इन स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज अ स्मॉलेस्ट surface area per unit volume. So to increase the surface of the liquid, work must be done against the surface tension. So when the bar is at position and the mass is added to extend the surface by a distance, so by a distance, the work जो है द वर्क इज, तो हमारा वर्क आ गया है ये जो मैंने आपको बताया W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो ये है हमारा डेल्टा A। तो डेल्टा A इज द एरिया जिसको हम जिसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड गामा इज द सरफेस टेंशन एंड इट्स यूनिट इज डाइंस पर सेंटीमीटर एंड W इज सरफेस फ्री एनर्जी। तो इसकी यूनिट हो गई है हमारी। सरफेस टेंशन को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द सरफेस फ्री एनर्जी चेंज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया हमारा सरफेस फ्री एनर्जी को भी सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस फ्री एनर्जी। सो फॉर इक्विलिब्रियम द सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी एट द मिनिमम, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ड्रॉप है उसको हमने स्फेयर एज्यूम किया है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे। अब इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे सरफेस फ्री एनर्जी से रिलेटेड। तो अगर मैं एक न्यूमेरिकल बोलते हैं, अ सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन ऑफ 35.07 डाइंस पर सेंटीमीटर इज अप्लाइड टू द बार ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू पुल वायर डाउन बाय 3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम लोग जो W इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा A है, और डेल्टा A जो है वो हमारा 35.07 है, और जो लेंथ है उसकी, अब हम यह बात करते हैं डेल्टा A को हम लिख सकते हैं 12 इंटू D। तो ये जो 12 है वो उसकी लेंथ हमें मालूम है, यानी कि 6 इंटू 2 इंटू उसके बाद जो हमारा जो ड्रॉप है वो है जो डायमीटर है वो है हमारा 3। तो अगर आप इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.05 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारा नियर अबाउट 1262 अर्ग्स सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे ये आया सरफेस वर्क डन। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा measurement of surface and interfacial tensions. So there are following methods which are used to measure the surface tension and the interfacial tension. These methods are capillary rise method, drop count method, या drop weight drop count method. Next one is रिंग या डू नॉय टेंसियोमीटर। इसके बाद एक और हमारा आता है इसमें जो डू नॉय टेंसियोमीटर, इसको हम रिंग डिटैचमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास these methods.